Welcome back to PB Medical Classes, and today's topic is preconception care. So before going to start the topic, just like, share and subscribe this channel. Introduction. Preconception care is an opportunity to improve health before start trying for a baby. A healthcare professional can help to assess health, fitness, and lifestyle to identify areas that may want to improve. So, preconception care generally it is before any couples, those who are thinking to get the baby. All right. So, it is a pre-planning before the pregnancy that the partners improve their health before they are trying for the baby. So a healthcare professional can help in their diet pattern, in their face fitness, their lifestyle, so that their improvement in the health status. So next definition. Preconception care is the provision of biomedical, behavior and social health intervention to women and couples before conception occurs. So generally preconception care is before the conceive. Alright, so it is given to the couples or women so that their behavior, their health can improve. Next, purpose. The first one is establish health lifestyle welfare to maintain optimum health, identify and treat risk medical condition substance abuse before. All right, so purpose, there will be change in the lifestyle behavior pattern and so that their health is improved, and if there is any risk, medical risk or any substance abuse before the before the couple want to have a baby, so they should treat the risk. Next, conceive pregnancy without necessary risk factor. Prepare people psychologically for pregnancy and their responsibility to become with parenthood. So there should be reduction in the risk factor. And next is the couples, the partners must be prepared psychologically before they are get in the parenthood condition or they are having a baby. नेक्स्ट द एम टू इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ स्टेटस. तो इससे क्या होगा कि जो मदर और बच्चे का हेल्थ स्टेटस है वो इम्प्रूव होगा. क्यों? क्योंकि जो दोनों पार्टनर्स हैं उन्होंने पहले से ही प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करी है या फिर जो अपनी हेल्थ स्टेटस है, उनकी लाइफ स्टाइल है, उसको पहले ही इम्प्रूव करके रखा है. Next, opportunity to prevent and control disease. So they can prevent any occurrence of the disease. So next is to secure optimal health and nutritional condition. इससे क्या हो सकता है कि वो जो न्यूट्रिशन कंडीशन है, उनकी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो भी इम्प्रूव होगा, उनका हेल्थ भी इम्प्रूव होगा. एंड टू इंश्योर दैट द वुमेन एंड हर पार्टनर आर इन ऑप्टिमल स्टेट ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ एट द ऑनसेट ऑफ द प्रेगनेंसी. तो इसका मेन एम यही है कि जो दोनों पार्टनर्स हैं वो फिजिकली और इमोशनली हेल्दी रहे सो दैट दे आर going to have a baby and they are mentally prepared for that. Next element of preconception care. So first one is focus on element which must be accomplished prior to conception or within weeks thereafter to be effective. So ये elements है जिसमें कि ये पहले ही कंसेप्शन से पहले और विद इन अ वीक ये बहुत सारे इफेक्टिव होते हैं. तो इसमें फर्स्ट तो रिस्क असेसमेंट आएगा कि जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, लाइफ स्टाइल है या सब्सटेंस अब्यूज है, वो रिस्क को असेस करना है. नेक्स्ट एजुकेशन फॉर हेल्थ प्रमोशन. देन जो दोनों कपल्स हैं मेल फीमेल, उन दोनों को क्या करना है, हेल्थ को लिए प्रमोट करना है, हेल्थी लाइफस्टाइल बतानी है, न्यूट्रिशन पैटर्न बताना है एंड मेडिकल इंटरवेंशन. अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है उसका प्रॉपर मेडिकल इंटरवेंशन होना चाहिए. नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ प्री कंसेप्शन केयर.
क्या क्यों इम्पोर्टेंट है प्री कंसेप्शन केयर? तो फर्स्ट वन है, प्री कंसेप्शन केयर हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन अ रेंज ऑफ हेल्थ आउटकम. Second one is to reduce maternal and child mortality. So फर्स्ट जो पॉइंट है उसका मतलब है कि जो पॉजिटिव इफेक्ट है हेल्थ आउटकम का वो दिखेगा पार्टनर्स पे. और दूसरा, जो मैटरनल और चाइल्ड डेथ हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थी लाइफस्टाइल या कोई रिस्क फैक्टर है या फिर इम्प्रॉपर केयर है, तो वो भी कम होगा. इससे क्या होगा, अगर प्री कंसेप्शन केयर ऑलरेडी पहले से ही किया होगा तो जो मदर और बच्चे का मोर्टेलिटी रेट है वो भी रिड्यूस होगा. नेक्स्ट, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी. बिकॉज जो पार्टनर्स हैं उन्होंने पहले से ही हेल्थी लाइफस्टाइल अडेप्ट करी है, न्यूट्रिशन पैटर्न उनका अच्छा है, तो इस और वो रेगुलरली हेल्थ चेकअप कर रहे हैं और जो हेल्थ प्रैक्टिशनर है उनसे मीटिंग कर रहे हैं, मीन्स हेल्थी लाइफस्टाइल को अडेप्ट पूरा वो कर चुके हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होगा फिर, अगर ये सब चीज़ें कोई कपल करते हैं तो जो प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन है वो रिड्यूस होने के चांसेस रहेंगे. ठीक है, तो जो कॉम्प्लिकेशन होंगे प्रेगनेंसी टाइम पे या डिलीवरी के टाइम पे वो भी प्रिवेंट कर सकते हैं अगर प्री कंसेप्शन काउंसलिंग या प्री कंसेप्शन केयर किया है तो. नेक्स्ट, प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट. क्योंकि पहले से ही रेगुलर एग्जामिनेशन हो रहे हैं, रेगुलर जो पार्टनर्स हैं वो डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, प्रोफेशनल्स हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो अगर बच्चे में कोई भी बर्थ डिफेक्ट है वो भी वो प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रिवेंट न्यूनेटल इन्फेक्शन. अगर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होगा तो जो न्यूनेटल इन्फेक्शन है उसके चांसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे. नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ प्री कंसेप्शन केयर. इसमें बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं कि जो प्री कंसेप्शन केयर है वो किस किस फैक्टर में हमें करनी चाहिए. तो फर्स्ट है मेडिकल हिस्ट्री. जो दोनों कपल्स हैं हस्बैंड वाइफ उन दोनों की पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेनी है कि अगर कोई भी उन्हें मेडिकल कोई प्रॉब्लम थी, और या ईयर वाइज हम कर सकते हैं कि अभी 1 ईयर पहले 2 ईयर पहले उनको कोई ऐसी मेडिकल इलनेस तो नहीं है, तो वो हमें लिखना पड़ेगा, मीन्स हिस्ट्री कलेक्ट करना पड़ेगा. एंड साइको सोशल इश्यूज, साइकोसोशल में दोनों ही आ जाएंगे कि हाउ दे कैन हैंडल द सोशल इश्यूज मेंटली, तो इसको भी हम नोट कर सकते हैं. देन फिजिकल एग्जामिनेशन, दोनों कपल्स जो कपल्स हैं उन दोनों का फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, वुमेन का भी मैन का भी, सो दैट कोई भी अगर डिफेक्ट है या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई पहले ही कर सकते हैं. देन लेबोरेटरी टेस्ट. लेबोरेटरी टेस्ट मीन्स कि रेगुलर एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और अगर कोई ब्लड टेस्ट करना है तो उसको भी कर सकते हैं. देन इसमें ही ब्लड टेस्ट लेबोरेटरी टेस्ट में एक और आ जाता है कि वोमेन का हमें जो हीमोग्लोबिन लेवल है, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब भी चेक कर सकते हैं सो दैट टू प्रिवेंट द एनीमिया. और नेक्स्ट है फैमिली एंड जेनेटिक हिस्ट्री. अगर कोई भी फैमिली में कोई कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी पहले हुई थी तो, या फिर ऐसी डिजीज़ है जो कि हेरिडिटरी है, तो उसको भी पहले से ही हम एग्जामिन कर सकते हैं. नेक्स्ट, और फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट, न्यूट्रिशनल असेसमेंट. न्यूट्रिशनल असेसमेंट बोथ पेरेंट्स का ले सकते हैं, बीएमआई चेक कर सकते हैं और उनको एडवाइस कर सकते हैं प्रॉपर न्यूट्रिटिव डाइट के लेने के लिए. देन ऑक्यूपेशनल एंड इन्वायरमेंटल रिस्क असेसमेंट. क्योंकि जब भी हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं तो उसमें ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री भी लेते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि जो दैट पर्टिकुलर पर्सन है वो किस साइट में काम करता है, मीन्स कोई रेडिएशन तो नहीं है हार्मफुल. बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जो वर्किंग साइट्स होते हैं जहाँ पे रेडिएशन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो उसके लिए भी हमें चेक करना पड़ेगा और रिस्क असेसमेंट भी देखना पड़ेगा. नेक्स्ट,
वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। अगर कोई भी ऐसी डिजीज हैं जिनको हम वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं तो हमें वैक्सीनेशन करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जैसे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनता है तो वुमेन का भी जो टिटनेस है वो भी हम प्रेगनेंसी के टाइम पे एडमिनिस्टर करते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे इम्यूनाइजेशन है जो कि बेबी को भी बाद में न्यूबॉर्न के बाद ही स्टार्ट होने लग जाते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ते हैं और एरियाज एड्रेस्ड बाय द प्री कंसेप्शन केयर पैकेज रिस्क असेसमेंट। अब इसमें जो एक हेल्थ काउंसलर होते हैं वो या फिर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो किस किस एरियाज को वो चेक करता है, मतलब असेस कर सकते हैं कि कैसे कैसे रिस्क हो सकते हैं दोनों पार्टनर्स में। तो इसमें फर्स्ट आता है कि एसटीडी प्रिवेंशन। सबसे पहले तो सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज प्रिवेंशन होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए चेकअप होना है हस्बैंड वाइफ का। नेक्स्ट है जेनेटिक इश्यूज, अगर उनमें फैमिली प्रॉब्लम चाहे वो मैटरनल है या फिर जो मेल के फैमिली में है तो उसको भी चेक कर सकते हैं हम। देन डोमेस्टिक वायलेंस, कभी कभी ऐसे होते हैं कि जो वुमेन है वो डोमेस्टिक वायलेंस सफ़र करती है तो उसके लिए भी पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं उसके हस्बैंड को भी फॉर रिड्यूसिंग दैट और एलिमिनेटिंग दैट। और जनरली हमें एक हिस्ट्री लेनी है कि डोमेस्टिक वायलेंस का तो नहीं है पेशेंट। और देन सब्सटेंस अब्यूज देखना है कि हिस्ट्री करनी है कि जो मेल है उसमें भी हिस्ट्री लेंगे और वुमेन, क्योंकि बहुत ऐसे आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है तो उसमें वुमेन्स भी एल्कोहलिक हैं तो वो भी चेक करना पड़ेगा बिफोर जो कंसेप्शन है। एंड देन अल्कोहल एंड टबैको यूज़, वो भी अगर कोई लेता है तो उसको भी हमें एडवाइस करनी है कि उन्हें स्टॉप कर देना चाहिए। एंड इन्वायरमेंटल फिजिकल केमिकल हैजार्ड्स को तो कोई भी अगर इन्वायरमेंटल फिजिकल या केमिकल कोई हैजार्ड है तो उसको भी अवॉइड कराना है। एंड एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन से भी रिड्यूस करना है। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ वुमेन फॉर हेल्दी प्रेगनेंसी, जो कि एक एम है प्री कंसेप्शन केयर का कि हेल्दी प्रेगनेंसी हो। तो फर्स्ट तो हम फॉलिक एसिड, जो कि हर एक वुमेन को ही एडवाइसेबल होते हैं कि फॉलिक एसिड टेबलेट्स लेने हैं। और जेनेटिक काउंसलिंग करनी है, डाइटरी एंड न्यूट्रिशनल एडवाइस दे सकते हैं। और आजकल तो डाइटिशियन भी होते हैं तो डाइटिशियन भी एडवाइस करते हैं न्यूट्रिशन। एंड प्रॉपर इम्यूनाइजेशन फॉर वुमेन, तो वुमेन का प्रॉपर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल या कार्ड एक बनता है जिसमें कि वुमेन का इम्यूनाइजेशन कौन से मंथ में हुआ है, ये सब रेगुलरली चेकअप जब करेंगे तो उसको प्रॉपर वे में भी करना है और कंटिन्यूटी बनाई रहनी है। देन हेल्थी बिहेवियर्स एंड ब्लड टेस्ट, तो ये एक कंपोनेंट्स ही है कि एक हेल्थी प्रेगनेंसी वुमेन को कैसे हम प्रोमोट कर सकते हैं कि एक हेल्थी प्रेगनेंसी हो। नेक्स्ट, फैक्टर दैट कुड चेंज टाइमिंग ऑफ और चॉइस टू कंसीव अ प्रेगनेंसी, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो टाइमिंग चेंज कर सकते हैं या चॉइस ऑफ कंसीव ऑफ प्रेगनेंसी वो अलग अलग किसी का हो सकता है कि कोई बर्थ स्पेसिंग मेथड अपनाते हैं। तो ये इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, फैक्टर्स आते हैं। तो फर्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस, कभी कभी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आपने देखा होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से मिसकैरेज हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें नोट करनी है और इन्फॉर्म करनी है। जब भी ऐसे कोई डोमेस्टिक वायलेंस या ऐसे मेडिको लीगल केसेस रहते हैं तो फिर उसमें हमें एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। एंड नेक्स्ट, द बर्थ स्पेसिंग, जैसे कि 3 इयर्स का गैप हम मानते हैं कि 2 बच्चों के बीच में होना चाहिए। एंड जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज
है तो उसको फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसको प्रिवेंशन करने के लिए अलग अलग मेजर्स यूज करने हैं। देन डिजीज विद पुअर प्रोग्नोसिस जैसे कि एड्स, डिजीज डेंजरस इन द प्रेगनेंसी, क्रोनिक हार्ट फेलियर एंड रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। तो ये सब कंपोनेंट है जिसको हमें हेल्थ वर्कर से डिस्कस करना चाहिए और जिससे कि जो हेल्थ को इलनेस है वो इलनेस रिड्यूस हो सके और हेल्थ इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट, बैरियर टू प्री कंसेप्शन केयर। कुछ ऐसे बैरियर्स आते हैं जो प्री कंसेप्शन केयर में हो सकते हैं, तो वो दो साइड से हो सकते हैं कि पेशेंट एस्पेक्ट से भी हो सकते हैं, प्रोवाइडर एक्सेप्ट से भी हो सकते हैं। तो पेशेंट में क्या क्या चांसेस रहेंगे या बैरियर रहेंगे? तो हाई रेट ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, मीन्स कि वुमेन को पता नहीं है या वुमेन ने प्लान नहीं किया बट इट वॉज अनइंटेंशनली वो प्रेगनेंसी हो गई है। Then ignorance about importance of good health habits prior to conception. अगर वो इग्नोर कर रही है जो हेल्दी हैबिट्स हैं उनको बिफोर कंसेप्शन। एंड लिमिट असेस टू हेल्थ सर्विसेज। लिमिट असेस टू हेल्थ सर्विसेज मीन्स अगर जैसे कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है जो हेल्दी है, वो अपने को सोच रही है कि वो हेल्दी है तो उसको कोई नीड नहीं है हेल्थ सर्विसेज में जाने के लिए या और प्रॉपर रेगुलर चेकअप कराने के लिए, तो वो भी एक वे रॉन्ग वे है। क्योंकि जब भी अगर प्रेगनेंसी हमारे को कंसीव करनी है या प्रेगनेंसी स्टेज में वुमेन है तो उसको एक रेगुलर विजिट करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोवाइडर एस्पेक्ट्स। अब जो प्रोवाइडर है मीन्स जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो दैट फील ऑफ हैविंग इनएडिक्वेट नॉलेज। सपोज अगर वो इनएडिक्वेट है, नॉलेज उनको प्रॉपर नहीं है, स्किल नहीं है, एंड देन परसेप्शन ऑफ प्री कंसेप्शन केयर बीइंग टाइम कंज्यूमिंग। अभी बहुत ऐसा हो सकता है क्योंकि प्री कंसेप्शन केयर में हमें एक पूरा हिस्ट्री लेना है, पैटर्न, डाइट पैटर्न सब कुछ देखना है और हो सकता है कि थोड़ा वुमेन या उस मैन जो मैन है दोनों जो पार्टनर्स हैं उनको हम कभी कभी क्या कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं या हेल्थ के लिए प्रमोट कर सकते हैं, तो ये किसी किसी को टाइम कंज्यूमिंग भी लग सकता है। नेक्स्ट, लैक of awareness of how to integrate pre-conception care into ongoing primary care। कभी कभी ऐसे होते हैं कि जो हेल्थ प्रोवाइडर्स होते हैं उनका मेन फोकस प्राइमरी केयर करने में होता है और वो इसको इग्नोर करते हैं या उनको इतना अवेयरनेस नहीं होता कि कैसे हमें प्री कंसेप्शन केयर करना है, क्या क्या उसमें फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट हैं। तो वो भी, ये सब भी बैरियर्स हो सकते हैं प्री कंसेप्शन केयर के लिए। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको प्री कंसेप्शन केयर के बारे में जितने भी मैंने कंपोनेंट्स बताए हैं, फैक्टर्स बताए हैं, वो पता होंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सब इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।